Hello, students. I welcome all of you at Hamdisha English classes. Today, I am going to summarize the lesson from 12th class. The name of the lesson is The Last Lesson from 12th class, first lesson, written by Alphonse Dudet. First of all, I would like to introduce you by explaining introduction. The last lesson The last lesson, written by Alphonse Daudet, narrates about the year 1870 when the Prussian forces under Bismarck attacked that captured France. The French district of Alaska and Lorraine went into Prussian hands. The new Persian rulers discontinued the teaching of French in the schools of these two districts. The French teachers were asked to leave the country. Now let us start summary. Frank started for school very late that morning. He was afraid out of being scolded because Mr. Hamel was to question them on participles and he did not know the first word about them. He thought of running away and spending the day out of door. The warm, bright day, the chirping of birds, and the Persian soldiers drilling in the poem field back of sawmill were tempting. But he resisted the temptation and hurried up to the school. Crowd Yes, there was a crowd in front of the bulletin board near the town hall. Whether the blacksmith asked friends not to go so fast, he assured that the boy that he would get to school in plenty of the time. Usually there was a great bustle when the school began, but that day everything was a quiet as Sunday morning. Through the windows, Frank saw his classmates already in their places and Mr. M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. Frank opened the door and went in. He blushed and was frightened. Mr. Hamel was very kindly asked him to go to his place. Frank noticed that their teacher had put on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cape, all embroidered. He wore these only on the inspection and prize days. The village people were sitting quietly on the usually empty back benches. Everybody looked sad and also had brought an old printer. M. Hamel said that it was the last lesson he would give them. Henceforth, only German was to be taught in the schools of Alaska and Lorraine. The new teacher would come the next day. This was their last lesson of French. He wanted them to be very attentive. Respect for the country, yeah, that was necessary. Franz felt very sorry that he had not learned his lesson properly. The idea that Mr. Hamel was going away made the narrator forget all about his ruler and how cranky he was. Now French understood why M. Hamel had put on his fine Sunday clothes, why the whole men of village were sitting there. They had come to thank the teacher for his 40 years faithful service and to show their respect for the country that was theirs no more. The beautiful language French, Mr. Hamel asked French to recite, but he stood there silent. The teacher did not scold him. He confessed that his parents and I mean to say, the teacher, were at fault.
Then he talked of French language, the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical. He asked them to guard it among them and never forget it. Their language was the key of their prison. Peasants sings in German. What does it mean? Then they had a lesson in grammar and writing. The pigeons cooed very low in the roof. French thought if they would make even pigeons sing in German, all the while Hamel was sitting motionless in the chair and gazing at one thing or the other. His sister was packing their trunks in the room above as they had to leave the country next day. After writing, they had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, be, bee, boo, boo, like this. Even old house was crying. Yeah, all at once the church clock struck 12 and then the midday prayers. At the same moment, the tempest of Persians returning from drill sounded under the windows. Mr. M. Hamel stood up. He wanted to speak, but something choked him. Then he took a piece of chalk and wrote on the blackboard as large as he could, Vive la France. After this, he stopped and leaned his head against the wall. Without a word, he made a gesture with his hand to indicate that the school was dismissed and they might go. In the conclusion, the summary reflects on the importance of one's language for any race and why it is crucial to safeguard it. This was the summary of the last lesson from 12th class. Book name is Flamingo. Yeah, from this book it has been arrived. If you go through this summary properly, all students, definitely you will be able to achieve good marks and you will be achieve to answer the questions. You go openly, you go line by line, open your book, then listen this, make pause, again start, again you can do it. So there won't be a single hindrance to get you succeed. Before that, I would like to request you rather, please subscribe, like and share my channel, and that will be helpful for your friends. Don't forget to share also. तो विद्यार्थियों, ये मैंने इंग्लिश में समरी बताई थी 12वीं क्लास फ्लेमिंगो किताब से, द लास्ट लेसन, जो कि लिखी गई है अल्फांस द्वैत द्वारा, आखिरी पाठ। आइए इसका हिंदी वर्जन में आपको कराता हूँ। इसके पहले की समरी समझाना चाहूँगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप किताब खोल के बैठिएगा, एक एक लाइन पढ़ने के बाद सुनते जाइए। इसमें आपको समझ में पक्की बातें समझ में आएगा और आपको क्वेश्चंस के आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो आइए अब मैं जो समरी अभी अंग्रेजी में की है, इसका हिंदी वर्जन आपको बताता हूँ। सुनिए ध्यान से। और इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सहपाठियों में शेयर करना न भूलें। आइए, अल्फांस द्वैत द्वारा लिखित आखिरी पाठ वर्ष 1870 के बारे में बताता है, जब बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रुशियाई सेना ने फ्रांस पर हमला कर इसे कब्जा कर लिया था। फ्रांस के दोनों ज़िले अल्सास और लॉरेन प्रुशिया के हाथों से चले गए। नए प्रुशियाई शासकों ने इन दोनों ज़िलों के स्कूलों में फ्रेंच का शिक्षण बंद कर दिया। फ्रांसीसी शिक्षकों को देश छोड़ने के लिए कहा गया। अब इसकी समरी करते हैं। आइए इसकी समरी में आपको समझाता हूँ। स्कूल के लिए देर हो रही थी। उस दिन प्रातः फ्रेंच विद्यालय के लिए बहुत देर से निकला। कौन? फ्रेंच। उसको देर हो रही थी। उसे धमकाए जाने का भय था, क्योंकि मिस्टर हेमल
उनसे पार्टिसिपल्स के विषय में प्रश्न पूछने वाले थे, जबकि वो उसके विषय में पहला अक्षर भी नहीं जानता था। उसने भाग जाने तथा खुले में दिन व्यतीत करने की सोची। गर्म चमकीला दिन, चहचहाते हुए पक्षी तथा आरा मशीन के पिछवाड़े, खुले खेतों में अभ्यास करते हुए प्रुशिया के सैनिक प्रलोभित करने वाले थे, परंतु उसने प्रलोभन को दबाया तथा शीघ्रता से विद्यालय की ओर चला गया। टाउन हॉल के समीप सूचना पट के सामने भीड़ थी। लोहार वेचर ने फ्रेंच को इतनी तेजी से न जाने को सलाह दी। उसने बालक को विश्वास दिलवाया कि विद्यालय में समय से पहले पहुंच जाएगा, इसलिए इतना तेज न चले। प्रायः विद्यालय प्रारंभ होने के समय काफ़ी कोलाहल होता था, शोर होता था, किंतु उस दिन प्रत्येक चीज़ ऐसे शांत थी जैसे रविवार की प्रातःकाल हो, रविवार की सुबह हो। खिड़की से फ्रेंच ने देखा कि उसके सहपाठी पहले से ही अपने अपने स्थान पर थे तथा मिस्टर हेमल अपने बाजू के नीचे लोहे का अपना भयंकर पैमाना, लकीर खींचने की पटरी रखे इधर उधर घूम रहे थे। फ्रेंच ने द्वार खोला तथा अंदर चला गया। शर्म से उसके चेहरे पर लालिमा आ रही थी तथा वो भयभीत था। मिस्टर हेमल ने अत्यंत दया भाव से उसे अपने स्थान पर जाने को कहा। फ्रेंच ने बहुत गौर से देखा कि उसके टीचर ने, शिक्षक ने, एक सुंदर हरा कोट, कमीज थी जिसके ऊपर झालर थी और छोटी काली रेशमी टोपी पहनी हुई थी। इस पर बहुत सुंदरता से कसीदा चढ़ा हुआ था, कढ़ाई की गई थी, बाकायदा एम्ब्रॉयडरी जिसको अपन बोलते हैं। वो इन्हें निरीक्षण, जिस दिन इंस्पेक्शन होता था या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था, स्पेशली उन दिनों में विद्यालय में पहनते थे। आज ये पहन के आने का स्पेशल कारण क्या है? ग्रामीण लोग चुपचाप प्रायः खाली रहने वाली पीछे की सीटों पर बैठे हुए थे। प्रत्येक व्यक्ति दुखी दिखाई देता था। वृद्ध हॉसर तो एक पुरानी प्रवेशिका वर्णमाला की बच्चों की पुस्तिका जिसको कहा जाता है वो भी लेके आया था। मिस्टर हेमल ने कहा कि अंतिम पाठ था वो उन्हें पढ़ाएगा। इसके पश्चात अल्फांस तथा लॉरेन के विद्यालयों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। नया अध्यापक अगले दिन आ जाएगा। उनका फ्रांसीसी भाषा का अंतिम पाठ था। वह चाहता था कि वे अत्यंत ध्यानपूर्वक रहे। देश का सम्मान क्या है यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर होता है। फ्रेंच को अफसोस हुआ, खेद हुआ कि उसने अपना पाठ उचित ढंग से याद नहीं किया था। मिस्टर हेमल के जाने की खबर से वर्णन करता यह भूल गया कि उसका पैमाना, पट्टी और वह मिस्टर हेमल कितने क्रूर रहे। अब फ्रेंच की समझ में आया कि मिस्टर हेमल ने अपनी सर्वश्रेष्ठ रविवासरीय पोशाक क्यों पहनी की रखी हुई थी। गांव के वृद्ध लोग वहां क्यों बैठे हुए थे? वे अध्यापक की 40 वर्ष की स्वामी भक्तिपूर्ण सेवा के लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए तथा देश के प्रति सम्मान प्रकट करने आए थे, जो अब उनका नहीं था। मिस्टर हेमल ने फ्रेंच को सत्सर गाने को कहा, किंतु वहाँ चुपचाप खड़ा रहा। अध्यापक ने उसे नहीं धमकाया, उसने स्वीकार किया वह स्वयं वह इसका मतलब अध्यापक खुद एक फ्रेंच के माता पिता दोषी थे। फिर उसने फ्रांसीसी भाषा के विषय में बातें की। संसार की सबसे सुंदर, साफ एवं अत्यधिक तर्कपूर्ण भाषा है। उसने हमें कहा कि अपने बीच इसकी रक्षा करें, कभी न भूले उसकी भाषा उसकी कारावास की कुंजी थी। फिर उन्हें व्याकरण तथा लेखन के पाठ मिले। छत पर कबूतर बहुत धीमे धीमे गुटरगू कर रहे थे। फ्रेंच सोचने लग गया कि वह कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाना गवाएंगे। इस पूरे समय मिस्टर हेमल कुर्सी पर गतिहीन बैठे हुए किसी न किसी वस्तु को देखते रहे। उनकी बहन ऊपर वाले कमरों में ट्रंकों में अपना सामान लगा रही थी, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश छोड़कर जाना था। लेखन के पश्चात उनका इतिहास का पाठ था तथा फिर बच्चों ने मंत्र की भांति उच्चारित बा बे बी बू इस प्रकार से बोला गया। वृद्ध हॉसर भी अश्रु बहा रहा था। अचानक क्या हुआ कि गिरजाघर के घंटे ने 12 बजाए तथा दोपहर की प्रार्थना हुई।
उसी क्षण प्रुशिया के सैनिकों के सैन्य अभ्यास से लौटने की तुरही की ध्वनि खिड़कियों के नीचे से आई। मिस्टर हैमल खड़े हो गए और वो बोलना चाहते थे, परंतु किसी चीज़ से उनका गला भर गया, एकदम चोक हो गया, गला रूंध गया। फिर उन्होंने चौक का टुकड़ा उठाया तथा जितने बड़े अक्षरों में लिख सकता था उतने बड़े अक्षरों में लिखा। क्या लिखा ब्लैक बोर्ड के ऊपर? कि फ्रांस अमर रहे। इसके पश्चात वो रुक गया, दीवार के साथ अपना सर झुका लिया, बिना कोई शब्द बोले उन्होंने हाथ से इंगित करने की मुद्रा बनाई। विद्यालय की छुट्टी हो गई थी, अब वे जा सकते थे। इस समरी का सारांश का निष्कर्ष यह है कि किसी जाति के लिए भाषा कितना महत्वपूर्ण होती है तथा इसकी सुरक्षा के लिए कितना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका पार्ट द लास्ट लेसन 12th क्लास का फेमिंग्लोव से, और इसकी आप अच्छी तरह से स्टडी कीजिएगा। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने सहपाठियों में शेयर कीजिएगा, और अच्छी तरह से इस पाठ की स्तुति करने के बाद, अध्ययन करने के बाद आप इस लायक हो जाएंगे कि प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आप परीक्षा में दे सकेंगे। आपकी सफल, अच्छी और तरक्की में जीवन की उन्नति हेतु मैं आपको बधाइयाँ देते हुए, मैं आपके लिए बेस्ट विशेस रखते हुए यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।